In the last lecture we have seen incremental analysis. Now we come to the next topic, that is choosing best alternative. So choosing best alternative means what? So here we have a different methods, which option is good for our organization, and how many money are invested in a project based on different method. Yes, so that is choosing best alternative. So organization has a huge sum of money of potential investment, and there are several different projects whose initial expenditure and annual revenues during their lives are known. So the organization has to select the best alternative among those several competing projects. So here there are some methods. One is present worth method, second one is future worth method, annual equivalent method, and last rate of return method. So we will see one by one these methods. So first one is present worth method. Yes, so in this method cash flows of alternative is reduced to time zero by assuming the interest rate is depending on the type of decision. So best alternative is selected by comparing the present worth amount of alternatives. So here a formula is given to us in present worth method. So here some variables are defined. For they are using in formula: P for initial investment, RJ for net revenue at the end of J years, I means compound interest rate, S means salvage value at the end of nth year. So here present worth method, which is equal to minus P plus A in bracket 1 plus I raised to n minus 1 divided by I in bracket 1 plus I raised to n. So this is the formula of present worth method. Okay, you have to memorize this formula. Okay, we will see example of present worth method. So here a example is given to you. At 20%, select best alternative based on present worth method for comparison of following technology alternatives. So here three technologies are given to us. These initial, what are the initial investment, what are the annual revenue, and what is the life of these three technologies are given to us in a table. Now we have to use present worth formula and calculation, and doing a calculation of these three technologies. So for technology 1, present worth of I, so माइनस P प्लस A इन ब्रैकेट, जो फॉर्मूला हमने देखी है वो हमने लिखी है. P मीन्स हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, सो दैट इज़ 12 lakhs. यस, सो 12 lakhs प्लस annual revenue, so that is 4 lakhs. So we have to write down 4 lakh in bracket 1 plus 0.2 मतलब 20% interest, and raised to 10 means our life of that technology. So raised to 10 minus 1, and below में 0.2 in bracket 1 plus 0.2 bracket complete raised to 10. Yes, so after calculating all these we are getting 4,76,988.83. that is the present worth value of technology 1. Same way we are doing the calculation for technology 2 and technology 3 by putting the values of, by putting appropriate values. So here present worth of technology 2, its value is 5,15,200. So which is highest than technology 1 and technology 2. Yes, so here it is suggested for implementation to expand this production, means here its value is higher. Yes, so its final present worth value, उसकी present की अभी value अभी इतनी मिल रही है, ठीक है, उसकी cost ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए हमें ये टेक्नोलॉजी है वो परचेज़ करनी है. सो एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ लाइफ हमें इतने ज़्यादा पैसे भी
मिलेंगे। सो इसीलिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी 2 है वो हमें सिलेक्ट करेंगे। सेकंड है फ्यूचर वर्थ मेथड। यस, so here various alternatives are computed. Alternative with maximum future worth of net revenue or with minimum future worth of cost is selected as a best alternative for implementation. ठीक है, यहाँ पे इस लाइन पे ज़्यादा फोकस करना है कि अगर मैक्सिमम फ्यूचर वर्थ है नेट वैल्यू का, नेट रेवेन्यू का, तो वो या फिर मिनिमम कॉस्ट है उसकी, उन दोनों में से कोई भी एक हमें एज अ बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो सिलेक्ट करना है। यस, अब उसकी फॉर्मूला है फ्यूचर वर्थ की। तो फ्यूचर वर्थ की फॉर्मूला है -p इन ब्रैकेट 1 + i⁻n प्लस a इन ब्रैकेट 1 + i⁻n - 1 डिवाइडेड बाय i। सो ये फॉर्मूला है फ्यूचर वर्थ मेथड की। तो क्या है, तो यहाँ पे देखो आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ पे हमें 2 ऑल्टरनेटिव दिया है, ऑल्टरनेटिव ए एंड ऑल्टरनेटिव बी। 4 साल का उसका ड्यूरेशन है। 18% के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है कि विच वन इज़ बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर वर्थ ऑल्टरनेटिव, अब यहाँ पे फ्यूचर मतलब फ्यूचर में हमें कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा पैसे, तो मतलब क्या, एनुअल अमाउंट कितनी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे है, तो हमने यूजिंग अ फॉर्मूला वी आर फाइंडिंग अ फ्यूचर वर्थ वैल्यू ऑफ ए ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो -p इन ब्रैकेट 1 + i⁻n प्लस a इन ब्रैकेट 1 + i⁻n - 1 डिवाइडेड बाय i। पुटिंग एप्रोप्रिएट वैल्यूज़ टू पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल। सो ये p मतलब जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 50 लाख रुपीज़ है। दैट इज़ अवर प्रेजेंट वैल्यू, मतलब प्रेजेंट इनिशियल टाइम पे उसने उतनी इन्वेस्ट किए हैं। तो -50 लाख इन ब्रैकेट 1 + 0.18, 18% है। ड्यूरेशन कितना है, तो अप टू 4 ईयर्स, तो रेज़ टू 4 प्लस 20 लाख ए मतलब लास्ट में, मतलब एन्युअली कितने वो पे कर रहा है इक्वल इंस्टॉलमेंट, सो दैट इज़ 20 लाख। ठीक है, तो वो हमने लिखा है 20 लाख। ठीक है, 1 + 0.80⁻4 - 1 डिवाइडेड बाय 0.18। ठीक है, तो सबका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलता है 7,40,000 रुपीज़ फ्यूचर में इतने। इसी तरह से हम बी की टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं, तो एट द आफ्टर डूइंग ऑल कैलकुलेशन वी आर गेटिंग 6,66,000 रुपीज़। ठीक है, तो किस में ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में कौन सी, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी ले, और तो फ्यूचर में हमें किसकी वैल्यू हमें ज़्यादा मिल रही है, तो हमें ए की वैल्यू है। ठीक है, वो ज़्यादा मिल रही है, तो हमें ए वाली जो टेक्नोलॉजी है वो हम परचेज़ करेंगे। नेक्स्ट है एनुअल इक्विवेलेंट मेथड। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट और रेवेन्यू ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव इज कंप्यूटेड, देन ऑल्टरनेटिव विथ मैक्सिमम एनुअल इक्विवेलेंट रेवेन्यू in the case of revenue based comparison or with minimum annual equivalent cost in the case of cost based comparison is selected as a best alternative। मतलब हमें कौन सा, अगर कॉस्ट हम लेते तो उसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अगर रेवेन्यू हम कंसिडर करते हैं, रेवेन्यू का हम कैलकुलेशन करते हैं, तो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 ऑल्टरनेटिव में से इस तरह से हम सिलेक्ट करके देंगे। अब यहाँ पे एनुअल इक्विवेलेंट मेथड है, उसकी फॉर्मूला हमें दी है। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है p इन ब्रैकेट i, उसके अंदर एक और ब्रैकेट 1 + i⁻n डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 1 + i⁻n - 1 ब्रैकेट पूरा जो मतलब बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट प्लस a। तो ये फॉर्मूला है एनुअल इक्विवेलेंट मेथड की। ठीक है, हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि 20% के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। तो
तो यहाँ पे टेंडर है, तो टेंडरर यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम तीनों का हमें कैलकुलेशन करना है। और यहाँ पे क्या है कि जिसका कम टेंडर मतलब जिसकी मिनिमम कॉस्ट आएगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उस टेंडर को सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे कोई रेवेन्यू की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें डाउन पेमेंट दिया है, ईयरली इतनी इंस्टॉलमेंट है वो इक्वली फाइंड पे करने हैं, हर एक टेंडर के अलग अलग है, और उसके इंस्टॉलमेंट कितनी नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट है वो पे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसकी कॉस्ट फाइंड करवे, तो तीनों का कैलकुलेशन करके जिसकी कॉस्ट मिनिमम आती है वो टेंडर है वो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम टेंडर ए का हम कैलकुलेशन करेंगे, तो जो इक्विवेलेंट मैथड, एनुअल इक्विवेलेंट मैथड है उसकी फॉर्मूला रखेंगे और वैल्यूज़ रख के हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे डाउन पेमेंट है दैट इज़ कंसिडर्ड एज पी, यस। और यहाँ पे ईयरली इंस्टॉलमेंट है वो है टेंडरर 1 का 2 lakhs, सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए, ठीक है। 15 इंस्टॉलमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं बोलो कि कितने ईयर्स के लिए, पर यहाँ पे बेस्ड ऑन एग्जाम्पल यहाँ पे 15 इंस्टॉलमेंट्स पे करना है, सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज एन, यस। So putting all values in our formula, we are getting 3,06,941.05 for tenderer A. Same way we have to find out for tenderer B, tenderer 2 and tenderer C. So for tenderer 2 we are getting 3,85,200 rupees. For tenderer 3 we are getting 2,27,800 rupees. So this is our annual equivalent cost, yes. तो यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट आएगी तो वो हम लेंगे। तो यहाँ पे टेंडरर 3 की मिनिमम कॉस्ट आ रही है, सो वी आर सिलेक्टेड टेंडरर 3, ओके। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न मैथड। ओके, सो रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न मेथड में क्या है, तो हमने पहले पढ़ ही चुके कि कैसे हम रेट ऑफ रिटर्न मेथड है वो फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न में क्या है, सो हियर अ कैश फ्लो पैटर्न इज अ इंटरेस्ट रेट एट विच अ प्रेजेंट वर्थ ऑफ कैश फ्लो रिड्यूस टू ज़ीरो। इस मेथड में जो रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, तो उसका जो हर एक ऑल्टरनेटिव है वो हम कंपैरिजन करेंगे, और यहाँ पे जो हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा दैट इज़ आवर बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी फॉर्मूला दी है, देखो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको दिखाया है। एस मतलब साल्वेज वैल्यू है, ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलर कोई भी कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी मशीनरी है कि हम 10 साल के बाद सेल करते हैं तो उसकी हमें क्या वैल्यू मिलती है, मतलब उसकी भंगार वैल्यू क्या है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए साल्वेज वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ग्राफ के थ्रू आपको दिखाया है, ठीक है। नेट रेवेन्यू मतलब एट द एंड ऑफ हर एक साल, मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अप टू एंड क्या मिलता है नेट रेवेन्यू वो दिखाया, और लास्ट में साल्वेज वैल्यू दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न मेथड है वो जो हम आगे भी पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो यही उसी तरह से हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वर्थ वैल्यू है वो उसकी वैल्यू है वो डिक्रीजिंग रेट में मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे व्हेन इंटरेस्ट रेट इज़ इंक्रीज्ड, मतलब जब इंटरेस्ट की वैल्यू है, ठीक है, वो इंक्रीज़ होगी तो प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती रहेगी। और वो ग्राफ के थ्रू हमें यहाँ पे दिखा है कि जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो तब जो प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखेंगे। अ कंपनी इज़ ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस इन अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। द लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट इज़ 5 years with no salvage value at the end of life. Initial outlay of a project is 1 lakh rupees. Annual net profit is 30,000.
फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ न्यू बिजनेस। ठीक है, इसी तरह का एग्जाम्पल हम जब रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस हम पढ़ चुके थे उस टाइम पे हमने देखा था। यहाँ पे प्रोजेक्ट की लाइफ है वो 5 साल है। ठीक है, एनुअल जो रेवेन्यू मिल रहा है दैट इज़ 30,000 है। प्रोजेक्ट है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो उसकी वैल्यू मिलती है हमें 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, सॉरी, हमें 1,00,000 रुपीज़ हम इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर 5 साल की लाइफ है तो हम परसेंटेज लेंगे 14, 15, 16। अगर 10 साल की लाइफ है तो हम अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज लेंगे 10, 11 एंड 12%। ठीक है, तो यहाँ पे 14% के हिसाब से हमें पता है रेट ऑफ रिटर्न की फॉर्मूला। ठीक है, तो वही रेट ऑफ रिटर्न की फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, 14% के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया तो हमें मिलता है 2,992.4। 15% के हिसाब से किया तो 564.7 मिलता है। और 16% के हिसाब से किया तो हमें मिलता है यहाँ पे -1,771.19 रुपीज़। ठीक है, अब हमें ये 3 ऑल्टरनेटिव है 14, 15 एंड 16। तो इन तीनों को कंबाइन करके एक और भी फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है, इंटरेस्ट की। तो इनिशियल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या है तो क्या 14%। तो आई प्लस प्रेजेंट वर्थ ऑफ प्रेजेंट वर्थ और उसकी जो परसेंटेज है वो -0 डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वर्थ ऑफ 14 माइनस प्रेजेंट वर्थ ऑफ 16 इंटू 2%। तो वो क्या है, 14 to 16 का जो डिफरेंस है वो हम लिखते हैं 16 माइनस 14%, सो इंटू 2%। ठीक है, सब में जो प्रेजेंट वर्थ ऑफ 14 मतलब 14 प्रेजेंट वर्थ में हमें वैल्यू क्या मिली, देखिए 2,992। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,992.4। ठीक है, और नीचे 16% में क्या मिली हमें वैल्यू, तो वो मिली 1,771.19 रुपीज़। तो वो हमने यहाँ पे लिखी। सो आफ्टर डूइंग ऑल कैलकुलेशन तो यहाँ पे हमें मिलता है 15.25%। सो 15.25% इज़ कंसिडर्ड एज अ रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑल्टरनेटिव है तो यहाँ पे 3 का हमने 3 ऑल्टरनेटिव की वैल्यू हमें मिली, 3 को कंबाइंड करेंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में क्या होना चाहिए। तो हमें मिला 15.25%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे और हाँ, यहाँ पे उसको ग्राफ में यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो 15.25 मतलब जो यहाँ पे टच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है परसेंटेज है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में दिए है और जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्टिकल लाइन में दिए है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन किया। एग्ज़ाम में आपको ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर फॉर्मूला एंड बेस्ड ऑन फॉर्मूला यू हैव टू डू कैलकुलेशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।